Hello students. So in the last lecture we have seen about the pointer arithmetic operators and the functions of functions used in pointers. Also we have seen the arrays and pointers, and in today's lecture we will go through the topic pointers and functions. So how we use pointers inside the function, how we send the values and the addresses to the function. So we will see this two types of, and we will also see two examples. The first one is passing any parameter in a function without using pointer, and the second example you will see that the passing the values passing the parameters with pointers. So पहले हम लोग बिना पॉइंटर का एक एग्जांपल देखेंगे और फिर पॉइंटर का एग्जांपल देखेंगे, तो सो दैट द things gets cleared very well. So let's start with the pointers and function. So in C++ functions we have learnt about passing arguments to a function, and this is called pass by value or passing by value. तो अब किसी जैसे कि एक फंक्शन है add, we are having a function add and we want to send two values int x int y. तो ये क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ को सेंड कर रहे हैं कहाँ पे, ऐड फंक्शन को. तो इन दिस केस दिस इज़ द पास बाय वैल्यू फंक्शन पैरामीटर, and because the actual value is passed in this, and there is another way of passing arguments to a function where the actual values of argument are not passed, instead the reference to values is passed. मतलब इसका क्या है कि जो एक्चुअल int x है या int y है ये हम लोग पास नहीं करते हैं. इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, int %x. एम्परसेंट क्या होता है, लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन दैट एम्परसेंट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल. किस एड्रेस पे वो वेरिएबल है, दैट इज पॉइंटेड बाय द ऑपरेटर एम्परसेंट ऑपरेटर. तो लेट्स सी द एग्जांपल्स. This is not a complete example, but we can go through the syntax very well with this example. So there are two functions. This is first one is function 1 and the second one is function 2, and inside that any code we can write any code. तो अभी केवल एक कमेंट लाइन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, let's see that in function 1 we are passing integer num value. integer num value क्या है, एक integer टाइप है वेरिएबल, जो num val क्या है, वेरिएबल है. एक num val integer टाइप वेरिएबल को पास किया जा रहा है फंक्शन 1 में. एंड इन फंक्शन 2 व्हाट इज बीइंग डन, इसमें क्या हो रहा है, इंटीजर num रेफरेंस ref num ref एम्परसेंट num ref. दैट मीन्स ये जो num ref है उसके एड्रेस को पास किया जा रहा है. यहाँ पे num ref के वैल्यूज़ को नहीं पॉइंट किया जा रहा है ना. जैसे इस दो ही एग्जांपल के लिए वी कैन से दैट लेट सपोज दिस इज़ आवर मेमोरी. ये मेमोरी है और इसका एड्रेस है 1001 और इसका एड्रेस है 1002. ऐसा कुछ एड्रेस होगा. और इस पॉइंट पे है num val है ना, और ये पॉइंट इस एड्रेस पे है num ref. एक ही एग्जांपल में दोनों देख लेते हैं. सो num val एंड num ref, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि 1001 जब यहाँ पे हम, और इसका वैल्यू है मान लीजिए 5 एंड हेयर द वैल्यू इज़ 10. ये वैल्यू है, ठीक है, और ये वेरिएबल का नाम है और ये एड्रेस है, ठीक है. ये तीन चीज़ स्पेसिफाइड है. अब ये फंक्शन 1 में हम लोग क्या पास करें, इंट num val. तो num val क्या है, ये num val है और इंटीजर टाइप वेरिएबल है. तो इसका हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पास करें, दैट मीन्स वी आर पासिंग द वैल्यू 5 टू दिस फंक्शन 1. एंड इन केस ऑफ फंक्शन 2 व्हाट वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ num ref. तो num ref ये है, इसके एड्रेस पे क्या है 1002. सो वी आर पासिंग हेयर 1002. यहाँ पे हम लोग 10 पास नहीं कर रहे, वी आर पासिंग 1002. दैट मीन्स वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल num ref. So it's a very much simple. So let's see one example of this both. So यहाँ वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी. So notice that ampersand in void function 2
फंक्शन 2 में जो एम्परसेंड था. So this denotes that we are using the address of the variable as our parameter. So when we call the function 2 in main by passing the variable num as an argument, we are actually passing the address of num variable instead of the value 5. तो हम लोग जब भी एम्परसेंड लगा कॉल करते हैं तो हम लोग वैल्यू ने उसका एड्रेस को कॉल करते हैं. वी कॉल द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, है ना. तो दिस इज द सेम, वही एग्जांपल है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे कि इंट नम है एंड फंक्शन 1 में वी वर स्पेसिफाइंग द नम एंड इन फंक्शन 2 वी वर स्पेसिफाइंग नम. बट हेयर व्हाट इज बीइंग डन, यहाँ पे ये जो नम हम पास कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर पासिंग 5. यहाँ पे 5 पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी 5 पास कर रहे हैं मेन से. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 एक्सेप्ट कर रहा है एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग द वैल्यू ऑफ 5 एज इट विल ओनली एक्सेप्ट द एड्रेस. तो ये क्या कहता है, 5 का जो एड्रेस होता है वो एक्सेप्ट करता है. ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज पासिंग बाय रेफरेंस विदाउट पॉइंटर. So in this example we will not use any pointer and we will see the simple method of using address and pass by values, pass by reference in this example. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, we are having one function name as swap, swap swap. So it will swap any two variable and we are passing integer ampersand n1 comma integer ampersand n2. ठीक है. अब स्वैप में हम क्या पास कर रहे हैं, दो वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं, किसका n1 एंड n2. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एक टेम्प वेरिएबल लिए और ये जो स्वैप का कोड होता है टेम्प इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड एंड सेकेंड इक्वल टू टेम्प. तो ये स्वैप का एक कोड लिख लिया. अब व्हाट वी आर डूइंग दैट फ्रॉम मेन वी आर स्पेसिफाइंग टू नंबर्स a एंड b एंड बिफोर स्वैपिंग वी विल प्रिंट द नंबर एज इट इज़. जैसे भी प्रिंट हो रहा है a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है. तो बिफोर स्वैपिंग वी आर प्रिंटिंग लाइक दिस एंड आफ्टर स्वैपिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, जब स्वैप हो जा रहा है सो वी कैन सी दैट स्वैप a b. स्वैप का मतलब क्या होता है, जब a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है तो स्वैप होने के बाद a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू 1 हो जाएगा. ठीक है. सो वी आर प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b ओवर हियर एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1. तब स्वैप क्या हो रहा है, जब यहाँ पे a और b सेंड किए तो a का वैल्यू 1 है एंड b का वैल्यू इज़ 2. तो इंट एम्परसेंड n1 में 1 आया है तो ये क्या करेगा, 1 का जो एड्रेस होगा, 1 का कुछ भी एक एड्रेस हो सकता है 1001 और 1002. तो इट विल टेक द एड्रेस ऑफ दैट a एंड दिस वन विल टेक द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल b एंड inside this function they will swap the values of a and b with each other. ठीक है. ऐसे swap हुआ without using pointer and in second example we will use pointer for swapping. So in this program we pass the variable a and b to swap functions and notice the function definition. तो यहाँ पे हम क्या किए, हम लोग a and b we have sent or we have passed the value a and b from the main. और क्या कर रहे हैं, स्वैप में जो फंक्शन है उस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वी आर स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ n1 एंड n2. सो हेयर वी आर यूजिंग एम्परसेंड टू डिनोट दैट द फंक्शन विल एक्सेप्ट एड्रेसेस. द फंक्शन विल एक्सेप्ट एड्रेसेस एज इट्स पैरामीटर्स एंड हेंस द कंपाइलर कैन आइडेंटिफाई दैट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, मतलब एक्चुअल वैल्यू के जगह पे द रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन पैरामीटर. मतलब उस जो फंक्शन पैरामीटर है उसका एड्रेस को पास किया गया. ठीक है. तो इन द स्वैप फंक्शन द फंक्शन पैरामीटर्स n1 एंड n2 आर पॉइंटिंग टू द सेम वैल्यूज. द n1 एंड n2 आर पॉइंटिंग टू द सेम वैल्यूज एज द वेरिएबल a एंड b. तो a जहाँ पे पास कर रहा है पॉइंट कर रहा है एंड b जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहीं पे n1 एंड n2 भी पॉइंट कर रहा है एंड हैज़ द स्वैपिंग टेक्स प्लेस ऑन एक्चुअल वैल्यूज. तो जो भी वैल्यू उस पर स्वैप हो जा रहा है वी हैव ऑलरेडी सीन द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल at least run one this type of program yourself. So in the next lecture in the next video we will see the passing by reference using pointers. Thank you.